Again, based on occurrence, events are of two types. Based on occurrence, events are of two types. Based on occurrence means if we are saying something whether that is coming or not, based on occurrence. Events. First one will be certain event. Certain event or sure event. Sure event. So which events will comes under this category? The event which are certain to happen, sure, 100% correct. For example, you will be older tomorrow than today. कल तुम ज़्यादा ओल्ड तुम्हारा हो जाएगा. Yes, that is 100% correct. एक दिन ज़्यादा हो जाएगा. That type of experiments are a certain event or sure event. That type of event. And here probability will be equals to 1. Probability exactly equals to 1 होगा. For certain events or sure event, probability will be always equals to 1. The second type of event, that will be impossible event. Impossible event or null event. Other name is null event. Which type of event will comes under this category? The event which are impossible to happen. For example, decrease in height. Decrease in height. Decrease in height of a person. This is one kind of impossible event because height कभी decrease होता ही नहीं है. Weight increase or decrease हो सकता है, but height either that will increase if there is age, and after a certain age the height will also remain same, but that will not decrease. So this type of events are known as null event or impossible event. Null event or impossible event. And here probability will be 0. Probability will be 0. And all event lies between 0 and 1. But there are some type of outcome which are not sure, neither is this is impossible, but lies between these two. So this type of cases are known as can happen but not certain. Can happen but not certain. This is a type of case in which the event is neither impossible nor certain but lies between these two. And for this type of event, the probability lies between 0 and 1. 0 and 1. So that will be less than 1 but greater than 0. And probability can't be negative, probability can't be more than 1. And basically adding these three, probability will be lies between 0 and 1 but both are inclusive. So I am writing here probability. ये E के जगह में, E means event है, and E के जगह में हम किसी भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं, बट दैट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर. प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हियर लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू. ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का जो है रेंज है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1 but greater than equals to 0. So you have to remember certain event probability is equals to 1, impossible event probability equals to 0, and for the third case probability lies between 0 and 1. Now let's discuss about complement of an event. So that will be called as complementary event. तो complement of an event क्या होगा, देखो complementary event we can write complementary event. For any event E, for any event E, its complement can be written as, its complementary event, its complement
can be written as E bar, or you can say E naught, not E, E naught, not E. You can read that E bar. And what is the relation between E and E bar? E, if E is any event, its opposite will be E bar or not E. From the name also you can find out. E naught means अगर event E है, एक event of getting odd number in throwing a dice. Then E bar will be event of not getting odd number in throwing a dice. Not getting means any number except odd number, means इसका opposite हो गया, तो यहाँ पे हम getting even number getting odd number लिख सकते हैं, getting even number. तो E अगर है event of getting odd number, then E bar क्या होगा? event of not getting a number except odd number. जैसे कि यहाँ पे इवेंट नंबर है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है. सो प्रोबेबिलिटी ये दोनों का कैसे रिलेटेड है, देखो. प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इक्वल्स टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार is equals to 1. So this is the relation between an event and its complementary events. Its complementary event is exactly opposite one. Suppose getting a head is E, any event, then its E bar will be, its complementary event will be getting a tail. So this way they are related to each other. Okay, so some important sentence related to probability जो है लिखो. First one is probability lies between 0 and 1. This is very important one. Probability lies between 0 and 1. Second one is P of E plus P of E bar is equals to 1. Complementary event. And the third one is the sum of probability of all elementary events of an experiment. All elementary events of an experiment is always equals to 1. Is always equals to 1. The sum of probability of all elementary events of an experiment is always equals to 1. So based on these three sentences, we have to solve different questions, and after this we will start solving the questions related to dice, related to coins, related to playing cards also. So before going to that, there will be some questions related to throwing dice twice. Like dice का तो तुम्हारा 6 आउटकम है. If that will be thrown once, if that will be thrown twice, अगर thrown twice, 2 times, or this can be written as throwing 2 dice simultaneously. Throwing 2 dice simultaneously. Number of outcome क्या होगा? What will be the number of outcome if a dice is thrown 2 times or 2 dice are thrown simultaneously? In that case, outcomes will be 6 square होगा. Total number outcome. I can write NS means number of outcome in the sample space S होगा 6 square. Means that is 6 into 6. अगर 3 टाइम होगा तो 3 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाएगा तो
6 इंटू 6 इंटू 6 होगा। सिमिलरली तुम्हारा कॉइन के केस में क्या होगा, 1 टॉस में क्या आता, 1 टाइम टॉस 1 कॉइन टॉस। पॉसिबल आउटकम क्या होता है, NS2 होता है, हेड एंड टेल। इफ 2 कॉइन्स थ्रोन simultaneously, 2 coins tossed, वहां पे 2 स्क्वायर और 2 इंटू 2 आएगा। अगर 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाएगा तो 2 टू द पावर ऑफ 3। अगर 4 कॉइन्स साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाएगा तो 2 टू द पावर ऑफ 4 आउटकम्स होगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम NS, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 टू द पावर ऑफ 2 होगा। यहाँ पे अगर 2 टाइम्स होगा तो बेसिकली इन प्रोबेबिलिटी अगर 2 कॉइन थ्रो किया गया एट ए टाइम, या फिर 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया, या फिर 2 कॉइन्स डिफरेंटली थ्रो किया गया, वो सेम जैसा लिया जाता है। द एक्सपेरिमेंट टेकन इज सेम, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। अगर 2 कॉइन्स थ्रो किया गया तो देखना, 2 डायस थ्रो किया गया तो भी देखना है तुम्हें। Okay, so based on this type we have to solve some questions. So I have to write some questions, we will solve together. For that, write down whatever I am writing here. Here is a question, find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. So in this type of question you have to go for classical probability. We have to go for classical or theoretical probability, because we are not going to toss a coin and finding the answer. We have to think classically, theoretically. Okay, so here you have to focus how many times the coin is tossed. One more thing, you have to write everything. Word problem जैसे करना है तुम लोगों को, बस if you are writing the answer half, you will be getting half marks or 1 marks. So तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम जैसे करना ही है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो यहाँ पे कॉइन है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, पॉसिबल आउटकम क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल है। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम NS क्या है, 2 है। और फॉर द फर्स्ट वन, सपोज वी आर डिवाइडिंग द क्वेश्चन इनटू फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। लेट, तुम नाम दे सकते हो किसी भी इवेंट का, लेट E इज प्रोबेबिलिटी, इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड, event of getting a head. So in this case the favorable outcome will be only 1, क्योंकि 2 ही possible outcome है, उसमें से 1 head है, तो हमें NE, number of outcome in the event E, favorable to event E क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 ही head होगा। तो नेक्स्ट हम P और B, अगर हम नाम दे देंगे E, A, B, C, D जो भी तुम चाहो, तो क्या होगा, वी कैन रिप्रेजेंट दैट मैथमेटिकली। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, और यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी लिख सकते हो, इफ H। आई एम राइटिंग हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बिकॉज आई हैव गिवन EH, इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ, फार्मूला याद है ना, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इन क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, possible outcome, total number of possible outcome. If you will write this formula for some example, then there will be one profit and one benefit, because you will remember this. If you will write for some questions, this will be very good to remember. तो इसे हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, N of E
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, NS सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे NS 2 है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड होगा इन दिस एक्सपेरिमेंट हाफ होगा। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। उसके लिए मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग T। इफ T इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल, वो क्या होगा, N ऑफ T डिवाइडेड बाय N ऑफ S होगा। सेम फॉर्मूला यू हैव टू राइट हियर। एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन सैंपल स्पेस है 2 एंड नंबर ऑफ टेल यहाँ पे है 1, हाफ होगा। These are the answer. Write this and let's come to the second question and I will write after you will complete this. Okay, now come to another question. In these questions, 2 coins tossed simultaneously. What is the probability of getting 2 head, 1 head, no head? No head मतलब 0 head. So if possible in this type of question, try to write all possible outcomes. Coin कितने हैं? 2 coin toss simultaneously. 2 coins tossed simultaneously. So possible outcomes क्या क्या हैं? It is possible to happen both the time head आ सकता है। फर्स्ट हेड इज फॉर फर्स्ट कॉइन, सेकेंड एज इज फॉर सेकेंड कॉइन, दोनों टाइम एज आ सकता है। मे बी फर्स्ट एज आ सकता है और सेकेंड टाइम टेल आ सकता है। अगेन इट इज पॉसिबल टू हैपन द फर्स्ट टाइम टेल एंड द सेकेंड टाइम हेड, TH आ सकता है। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू हैपन TT इन बोथ द केस। TT मीन्स टेल एंड टेल, नो हेड। सो ये है पॉसिबल आउटकम। सो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स है? 4 है। तो हम यहाँ पे NS इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। NS मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन द सैंपल स्पेस S। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बीट में चाहिए 2 हेड, 2 हेड चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ HH। तो इन दिस सेट कितना HH है? डबल H वाला कितने हैं? एक ही है। तो फेवरेबल जो है N फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल जो है डबल H एक ही टाइम है तो 1 करेंगे एंड हियर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है 4 है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेड इज 1/4। सिमिलरली अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम भी दे सकते हो, 1 हेड या फिर आई एम राइटिंग 1 हेड, डायरेक्टली 1 हेड लिख सकते हैं। नहीं तो हम E एक इवेंट ले सकते हैं, लेट E इज गेटिंग 1 हेड भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड क्या होगा? कितना 1 हेड है? HT में भी 1 हेड है, TH में भी 1 हेड है। यहाँ पे बोला नहीं गया है कि फर्स्ट हेड सेकेंड हेड, तो हम ओनली 1 हेड बोला गया है। तो ये दोनों केसेस में 1 हेड है। तो हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह में हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 केसेस में 1 हेड आ रहा है। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4 लिख सकते हैं। दैट मीन्स 50% चांस ऐसा है कि हमें 1 हेड मिलेगा। देन इन द थर्ड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। नो हेड मतलब हेड नहीं मिलेगा। हेड नहीं मिलेगा, कॉइन है तो क्या मिलेगा? टेल ही मिलेगा। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें कि हेड बिल्कुल भी नहीं है एंड ओनली टेल है? तो दिस इज द फोर्थ वन। यहाँ पे दोनों टेल ही हैं। एंड इसके लिए कितने केसेस हैं जिसमें ओनली टेल है, हेड नहीं है? नो हेड, 0 हेड, 1 केस है। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 है। तो इसका
प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा। यू कैन सी फ्रॉम दिस क्वेश्चंस कि डिनोमिनेटर नॉर्मली सेम ही हो रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिनोमिनेटर में हो रहा है, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है यू हैव टू सी फ्रॉम द एग्जाम्पल, फ्रॉम द आउटकम्स, यहाँ पे तुम्हें देखना है। ओके okay, now let's solve some questions related to dice. In this question, a die is thrown once. What is the probability of getting a number greater than 4 and less than or equals to 5? ये सारे questions हैं, we have to solve that. First, die आ रहा है तो if a die is thrown once, what are the possible outcomes? If a die is thrown once, पॉसिबल आउटकम्स क्या है? वन, 2, 3, 4, 5, 6 है। दैट मीन्स NS, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 6 आ गया ये। सो देन प्रोबेबिलिटी में तुम्हें यू हैव टू फोकस ऑन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो एक ही टाइम में फिक्स हो गया फॉर ए क्वेश्चन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को तुम्हें फोकस करना है। तो फर्स्ट है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो मैं उसे लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी P ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 6 है। यहाँ पे कितने आउटकम है जो कि फेवर कर रहा है ग्रेटर देन 4 के लिए, ग्रेटर देन 4 के लिए। सो देयर आर ओनली 2 नंबर व्हिच आर ग्रेटर देन 4, वो है 5 एंड 6, तो 2 आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/6, आंसर विल बी 1/3। देन द सेकेंड जो है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 5, लेस देन और इक्वल्स टू 5। इसके लिए भी तुम नाम भी दे सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 6 गिवन है, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला एज वेल, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 5 सॉरी, तो इसके लिए ये पांचों आ जाएंगे, 5 और 5 से छोटा है, तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स 5 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 5/6। सो ऐसे तुम इवेंट नंबर के लिए भी निकाल सकते हैं हम। थर्ड देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है, कितना इवेंट नंबर है यहाँ पे बताओ, फ्रॉम 1 to 6 देयर विल बी 3 इवेंट नंबर, 2 है इवेंट नंबर, 4 है एंड आफ्टर दैट 6, तो 3 इवेंट नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी 3/6 होगा, दैट विल बी 1/2। सिमिलरली तुम कंपोजिट के लिए खुद कर लेना बच्चों, बताओ कि कंपोजिट नंबर क्या क्या है इसमें, बताओ कंपोजिट नंबर। यस, कंपोजिट नंबर यहाँ पे है, 2 कंपोजिट है, एक कंपोजिट है 4 और एक कंपोजिट है 6। यू नो ना, कंपोजिट नंबर मीन्स द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, तो 4 का भी मोर देन 2 फैक्टर है, 6 का भी मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम फेवरेबल आउटकम है, सो द आंसर विल बी 2/6 which is equals to 1/3। So in this way you have to solve, you have to focus on how many favorable outcomes are there and how many total possible outcomes is there. Okay.